اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام من علامات المؤمن خمس التختم بالیمین الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة 51 تعفیر الجبین زیارت الاربعین۔ عزیزان محترم، زائرین امام حسین علیہ السلام، آپ حضرات کے سامنے جس مشہور روایت کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے عنوان سخن قرار دیا ہے، وہ وہی روایت ہے جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آج کی مناسبت سے زیارت اربعین کی مناسبت سے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوں تو مومن کی بہت سی علامتیں ہیں، لیکن خاص 5 علامتیں امام عسکری علیہ السلام کے دہن اقدس سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ نماز ہو یا غیر نماز، جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جب بھی بسم اللہ کہیں، بلند آواز سے کہیں کہ یہ مومن کی علامت ہے۔ بنی امیہ نے آثار امام علی علیہ السلام کو محو کرنے کے لیے بسم اللہ کو پہلے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا اور بعد میں اسے حذف کر دیا، اور آج بھی مسلمان بنی امیہ اور سر فہرست معاویہ کی اتباع میں بسم اللہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ دوسری علامت التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننا۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہے۔ انگوٹھی خود انگوٹھی کا پہننا ثواب ہے، اور وہ نگینے جن کی مدح کی گئی ہے ان کا انتخاب الگ سے ثواب ہے، اور اگر ان نگینوں میں وہ نگینے جو ولایت معصومین اور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول کرنے میں پیش تھے، ان کا انتخاب اور بھی زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ عقیق کے لیے اور یاقوت کے لیے متعدد روایات موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نگینہ مجھے نہیں لگتا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ وہ نگینے، وہ نگ جن کی مدح کی گئی ہے، آنکھ بند کر کے روایات معصومین پر عمل کرتے ہوئے ان کا انتخاب کریے اور پہننا شروع کر دیجیے۔ تیسری علامت صلاۃ 51 51 رکعت نماز ہے، جس میں 17 واجب اور 17 جو مستحب نماز ہے۔ ان مستحب نمازوں میں 34 ہوتی ہے، جس میں سے 11 رکعت نماز شب ہے اور بقیہ نوافل یومیہ ہیں۔ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے، لہٰذا ہم آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس علامت کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے نوافل یومیہ پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نماز صبح کی نافلہ، نماز مغرب کی نافلہ اور نماز عشاء کی نافلہ ضرور پڑھیں، اور نماز شب میں اگر امکان پیدا ہو تو ساری 11 رکعت نہیں تو 8 رکعت، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 رکعت شفع اور وتر، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 1 رکعت نماز وتر نماز صبح سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ یہ انسانوں کے مومن کے امکانات کے اوپر ہے۔ اگلی علامت جسے امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، تعفیر الجبین۔ عفر کہتے ہیں رگڑنے کو، خاک کے اوپر ملنے کو۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں۔ تعفیر الجبین سے مراد یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو خاک پر رکھے۔ پتھر پہ بھی نماز ہو سکتی ہے، سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی کے اوپر بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن مومن کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ خاک پر سجدہ ہو، اور خاک میں اگر خاک شفا ہو تو کیا کہنا سونے پہ سہاگا ہے۔ خاک شفا پر سجدہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے،
اس سلسلے میں احکام خاک شفا کے عنوان سے کتاب بھی موجود ہے۔ اگلی علامت زیارت الاربعین، 40 کی زیارت۔ یہاں پر بعض منحرف مزاج لوگوں نے اس کو دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر 40 مومن کی ملاقات ہے، 40 مومن کا دیدار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ زیارت الاربعین سے مراد آج کے دن، اربعین کے دن، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے، اور وہ مخصوص زیارت جس کا تذکرہ خود کتاب کامل الزیارات جو معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، چھٹے امام سے اس میں زیارت نقل ہوئی ہے۔ وہ زیارت جس کے لیے مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے، وہ 40 مومن کا دیدار نہیں ہے، بلکہ زیارت امام حسین علیہ السلام اور خاص اربعین کے دن کی زیارت ہے۔ ہاں، اگر جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکتے، مزار امام حسین علیہ السلام پر نہیں پہنچ سکتے، انہیں چاہیے کہ گھر کی چھت کے اوپر چلے جائیں یا صحرا میں چلے جائیں، داہنے بائیں دیکھنے کے بعد پھر رخ کریں قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور پھر زیارت اربعین یا کوئی بھی زیارت پڑھیں، انشاءاللہ انہیں وہ اجر و ثواب ملے گا جو مومنین کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 علامتیں تھیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے جو اجر و ثواب روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور سے 2-3 کتابوں میں، جن میں سے ایک کا میں نے نام لیا، دوسری کتاب نور عین جو علامہ استحباناتی کی کتاب ہے، اور دوسرے فضل و زیارت الحسین جو علامہ شجری کی کتاب ہے۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام پر بیان کی گئی ہیں۔ ان روایات میں معتبر ترین روایات میں سے ایک جناب معاویہ ابن وہب کی روایت ہے، جو آپ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنی ہے، جس میں آپ حضرات نے آج تک جو اس عنوان کے تحت یہاں پہ گفتگو 19 دنوں تک ہوئی ہے، یقیناً بہت سے علماء سے اس روایت کو سنا ہوگا، لہٰذا میں اس پوری روایت کو نہیں بلکہ 2-1 جملے اس کے انتخابی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سجدے کی حالت میں روتے ہوئے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے تھے۔ معاویہ ابن وہب جو حضرت امام صادق علیہ السلام کے معتبر ترین اصحاب میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور میں نے امام سے عرض کیا، مولا یہ جو فضیلتیں آپ نے بیان کی ہے، یہ جو آپ نے دعائیں کی ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے، اگر کوئی اللہ سے بھی ناآشنا ہوتا، دہری ہوتا، خدا کا ماننے والا نہ ہوتا، اور اس طرح کی فضیلت آپ جیسے صادق اماموں سے سن لیتا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا، تو یقیناً اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی تھی۔ یہ فقرہ معاویہ ابن وہب کی زبان پر آیا، مگر امام صادق علیہ السلام نے کوئی انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب امام کا سکوت اس بات کی تائید ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام والا ہو جائے، ان کی زیارت کرنے والا ہو جائے، معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کر لے، تو یقیناً اسے خدا کی بھی معرفت ہو جائے گی، اسے رسول خدا کی بھی معرفت ہو جائے گی، اور وہ یقیناً جہنمی ہوتے ہوئے جنتی ہو جائے گا۔ دوسرا فقرہ جو معاویہ ابن وہب کی زبان پر آیا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تمہید باندھنا چاہوں گا۔ وہ تمہید یہ ہے کہ بعض ذاکرین اور بعض خطباء کے اوپر اعتراض عوام الناس میں سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ عزاداری کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، ماتم کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بعض مومنین، بعض شیعہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کی تشویق و ترغیب فضیلت کی طرف، معجزات کے بیان کی طرف
आज़ादारी और सीना ज़नी की तरफ इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इन्हिराफ का शिकार हो जाते हैं। तो जवाब में ये कहना चाहूँगा, हमारी ज़िम्मेदारी खुतबा और ज़ाकिरीन, उलमा और वाइज़ीन की ये है कि हम हर चीज़ को कमा हक़्क़हू, जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जैसे बयान किया है वैसे बयान करें। सही है कि मुमकिन है बाज़ फ़जीलत, बाज़ मोजज़े, बाज़ सवाब को सुनकर अज़मत सवाब, बड़े सवाब को मद्देनज़र रखते हुए छोटे सवाब के काम को लोग छोड़ दें, तो इसमें हमारी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं है। ये चीज़ आज के दौर में नहीं बल्कि इमामों के ज़माने में भी ऐसी फ़िक्र रही है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम खाक पे सजदे को बयान कर रहे हैं। खाक पर सजदा मोमिन की अलामत है, अभी मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन अगर खाक शिफा हो, उसके ऊपर सजदा किया जाए तो यकीनन मक्का की खाक, मदीना की खाक, तूस की खाक, दूसरी खाक के ऊपर इंसान सजदा करने के बजाय खाक करबला पर सजदा करेगा। क्यों? इसलिए कि खाक करबला की अज़मत के मुकाबिल में किसी सरज़मीन की खाक का अजर व सवाब नहीं है। तो अब अगर खाक शिफा की अहमियत बयान की जा रही है, हमारी ज़िम्मेदारी है बयान करना। उससे लोग अगर फ़ायदा सही नहीं उठा पाते तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको मुतवज्जे करें, लेकिन ये इन्हिराफ का सबब नहीं है। और यकीनन जब खाक शिफा की अज़मत ज़्यादा बयान की जाएगी, जो है वो बयान की जाएगी, तो दूसरी खाक के ऊपर मोमिन सजदा करना यकीनन छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक को अहम और मुहिम को देखना होता है। जो सबसे ज़्यादा सवाब का बाइस है वो काम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जनाब मुआविया इब्न वहब के सामने जब इमाम ने सजदे से सर उठाया रोते हुए, और जो दुआएं की हैं आपने इन अय्याम में यकीनन उन दुआओं को सुना होगा, तो जनाब मुआविया इब्न वहब कहते हैं, इमाम उनसे पहले कहते हैं, तुम कितने फ़ासले पर हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से? तो वो फ़ासला बयान करने के बजाय कहते हैं, मौला मैं नहीं समझता था कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना अजर व सवाब है। और फिर जो पलट करके वो कसम खुदा बखुदा कसम खा करके कहते हैं कि मौला ये जो आपने अजर व सवाब बयान किया है, ये जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आपने दुआ फरमाई है, अगर इतनी दुआ, इतनी अहमियत, इतनी अज़मत, इतने सवाब का मुझे इल्म होता तो मैं वल्लाहे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाता, हज करने ना जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मुआविया इब्न वहब इमाम के पुख्ता सहाबी, मौलाई सहाबी, वो कह रहे हैं, वल्लाहि लौ अलिम, तो अगर मैं ये जानता होता कि इतना अजर व सवाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर, तो वाजिब हज तो मैं कर ही चुका हूँ। मैं हज करने के लिए न जाता, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाता। यकीनन मोमिनीन, जो मोमिनीन अक्सरियत जानती है, सभी तकरीबन जानते हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजर क्या है। और ख़ास तौर से अरबईन के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी राह में, उनकी ज़ियारत की राह में प्यादा पा चलना किस कदर अजर व सवाब है। मोमिनीन जब ये जानेंगे और हज के सवाब को भी जानेंगे और मुआज़ना और मुक़ायसा करेंगे, तो यकीनन वाजिब हज करने के बाद वो शायद हज करने के लिए न जाएं, उम्रा करने के लिए न जाएं, बल्कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आएँ। ये बात मुआविया इब्न वहब ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने जब कही, तो इमाम ने इनकार नहीं किया, मना नहीं किया, ये नहीं कहा ज़ियारत भी करो, हज भी करो, ज़ियारत भी करो, उम्रा भी करो, नहीं। इमाम ने ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया, बल्कि ये तज़किरा न करना गोया मुआविया इब्न वहब की फ़िक्र के ऊपर ताईद है, मोहर ताईद है कि हाँ, अगर कोई वाजिब हज बिल्कुल नमाज और रोज़ा की तरह से है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। जिसके ऊपर इस्तिताअत है, जिसके पास इस्तिताअत पाई जाती है, उसे चाहिए कि यकीनन पहले हज कर ले, और अगर उससे पहले ज़ियारत के असबाब फराहम हो जाते हैं, ज़ियारत करे। जब इम्कान हो, जब इस्तिताअत शरइया हो जाए, तो उसे हज करना चाहिए। हज के साथ ज़ियारत भी करे, तमाम मासूमीन की ज़ियारत करे, मगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अज़ीम अजर व सवाब रखती है कि जिसकी तरफ सारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने तशवीक़ और तरग़ीब दिलाई है। आज
जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अरबईन से ज़ुहूर तक। असलन ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हिलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या रब्त है? बज़ाहिर कोई रब्त नज़र नहीं आता। अरबईन के दिन की ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोमिन की अलामत है, और ज़ुहूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त होगा जब खुदा की मर्ज़ी और मसलहत होगी, बंदों की मसलहत और खुदा की मर्ज़ी होगी। नहीं अज़ीज़ो, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सब के सब ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुकम्मल रब्त रखते हैं। और ये रब्त आज का नहीं है, करबला का वाक़या पेश आने से पहले, अरबईन के वजूद में आने से पहले खुदावंद मुताल ने और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने रब्त बतलाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जब वाक़े हो रही थी करबला में सन 61 हिजरी को, तो खुदा की बारगाह में फ़रिश्तों ने रोते हुए फ़रियाद की, पालने वाले इस रूए ज़मीन पर आज अगर कोई तेरी हुज्जत है, कोई मासूम रहनुमा है कि जो तेरी सही मानों में इबादत करने वाला है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कोई अगर नबी का नवासा है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इस तरह से बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है, तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आई, ऐ मेरे फ़रिश्तों परेशान न हो। और फिर उन्हें मुतवज्जिह किया गया सुरादक़ अर्श की तरफ, अर्श के पर्दों की तरफ। कहा गया है फ़रिश्तों मेरे देखो इस तरफ। अब जो फ़रिश्तों ने नज़र दौड़ाई तो क्या देखा? चाहरदा नूर के हाले में एक नूर है, जिस्मानी शक्ल है, उसकी नूरानी शक्ल है, और वो रुकू और सजदे में मसरूफ़ है। आवाज़ कुदरत आई, हे मेरे फ़रिश्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा और प्यासा बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है, लेकिन मैं खुदा मुंतक़िम हूँ, मैं ज़ुंतक़ाम हूँ, इंतकाम लेने वाला हूँ। और मैं ख़ुद चल कर के मुनहरिफीन के अक़ीदे की तरह से चरखे चहारुम पर आकर के मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं इंतकाम लूँगा इस हुज्जत खुदा के ज़रिए। आवाज़ कुदरत आई, अंतक़िम बेहाज़ा ले हाज़ा। फ़रिश्तों को 2 हाज़ा के ज़रिए से मुशारुन इलैह की तरफ इशारा किया गया। एक मुशारुन इलैह जो नमाज में मसरूफ़ था, वो नूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम था, उसकी तरफ इशारा करके खुदा कह रहा है, अंतक़िमो बेहाज़ा, मैं इसके ज़रिए से इंतकाम लूँगा। लेहाजा, ये जो सरज़मीन करबला पर तड़पा तड़पा के भूखा प्यासा शहीद किया जा रहा है, इसका मैं इंतकाम लूँगा। हज़रत मुख्तार ने भी इंतकाम लिया, बहुत से मोमिनीन ने इंतकाम लिया, तव्वाबीन ने क़याम करके बाज़ दुश्मनों को कत्ल किया। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी इंतकाम लेंगे, लेकिन क्या ये इंतकाम पूरा हो जाएगा? नहीं अज़ीज़ों, खुदा ऐलान कर रहा है, मैं इस हुज्जत खुदा के ज़रिए से इंतकाम लूँगा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाम लेंगे। मगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इंतकाम भी नाकाफ़ी होगा। क्यों? इसलिए कि एक हुज्जत खुदा का एक क़तरा अगर कोई बहा दे तो उसकी बराबरी, उसका मुकाबला पूरी दुनिया के लोगों को अगर कत्ल कर दिया जाए तब भी उस एक क़तरे के बराबर इंतकाम नहीं हो सकता। इसलिए इसी दुनिया में रजात के ज़माने में ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाद जो दुश्मनान अहले बैत को ज़िंदा किया जाएगा, उनसे इंतकाम लिया जाएगा, वो तो अपनी जगह पर है। क़यामत में भी खुदा आतिश जहन्नम में झोंक कर दुश्मनान आले मोहम्मद को अज़ाब में मुब्तला करेगा और उनसे इंतकाम लेगा। एक रब्त ये जो आपके सामने मैंने ज़िक्र किया। दूसरा रब्त ये है कि हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, और मुख्तलिफ़ रवायात है, जिसमें एक रवायत है कि 313 साल 320 साल, वो भी उस ज़माने का जो 1 दिन 10 दिन के बराबर होगा। उतनी हुकूमत करने के बाद जब इमाम इस दुनिया से रुखसत होने वाले होंगे, यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम या शहीद होंगे, जैसा कि एक रवायत में ज़िक्र हुआ है। दूसरी रवायत ये है कि नहीं, इमाम की शहादत से पहले या इमाम की रहलत से पहले। रवायत का फ़िक्रा है
अव्वलु मन यकिर्रु इला दुनिया अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। दुनिया में जो सबसे पहले रजात करेगा, सबसे पहले इसी दुनिया में आ करके अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ होकर दुश्मनान खुदा से इंतकाम लेगा। हज़रत आदम के ज़माने से आखिरी नबी तक और आखिरी नबी से ले कर के आखिरी इमाम तक जितने भी ज़ालिम हैं उन सब से, अलबत्ता ज़ालिमीन की भी बड़ी कैटेगरी है। जिन ज़ालिमीन को मैं मद्देनज़र रख के कह रहा हूँ वो अम्बिया, औलिया और इम्मा ताहिरीन के ऊपर जुल्म करने वाले या बुज़ुर्ग मोमिनीन के ऊपर ताअद्दी और तजावुज़ करने वालों की बात है, क्योंकि रजात के ज़माने में सब वापस नहीं आएंगे। बहरहाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इंतकाम लेंगे। रवायत का फ़िक्रा है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शहादत या रहलत से पहले सबसे पहले इमामों में जो सबसे पहले तशरीफ़ लाएंगे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और तनहा नहीं आएंगे, आपके साथ वो सारे असहाब व अंसार जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक कहा, उनकी नुसरत के लिए अपना घर बार छोड़ा और इमाम के साथ हो कर के करबला में साथ दिया, शहीद हुए। उन सब के साथ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदावंद मुताल उनके असहाब के साथ ज़िंदा करेगा और फिर इस दुनिया ही में, इसी दुनिया में इमाम तशरीफ़ ला करके अपने ज़ालिमों से इंतकाम लेंगे। ये दूसरी वजह जिसको उन्वान के तौर पर पेश किया गया है कि अरबईन से ज़ुहूर का राबिता क्या है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तशरीफ़ लाएंगे और तशरीफ़ लाने के बाद जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब आपको गुस्ल व कफ़न, मैंने कहा कि दो रवायत है, एक ज़न यहूदिया के ज़रिए से जो इस्फ़हान के छत से पत्थर मार करके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को शहीद करेगी, उस रवायत के सिलसिले में हमारे उलमा ने कहा है कमज़ोर रवायत है। मैं नफ़ी नहीं कर रहा हूँ, कमज़ोर रवायत है। अगर इमाम इस तरह से शहीद होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको गुस्ल व कफ़न न देते बल्कि उसी लिबास में इमाम को शहीद करते, क्योंकि इमाम इस तरीके से शहीद होने के बाद शहीद राह खुदा हैं। लेकिन दूसरी रवायत ये कहती है कि इमाम अपनी तबी इस दुनिया से रुखसत होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों से आपको गुस्ल व कफ़न देंगे और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ा कर मोमिनीन के हमरा उन्हें सुपुर्द लहद करेंगे। फिर दूसरी मरतबा जब बहुत दिनों के बाद क़यामत आने से पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तब उन्हें शहादत का दर्जा मिलेगा, क्योंकि रवायत आठवें इमाम से भी मौजूद है, दूसरे इमाम से भी मौजूद है, मा मिन्ना इल्ला मक़तूलन और मसमूम, हम अहले बैत में से कोई ऐसा नहीं है जिसे या ज़हर से शहीद किया गया है या तलवार से शहीद किया गया है। रसूल इस्लाम भी ज़हर से शहीद हुए, जनाब सैयदा उस मलऊन खबीस के हाथों ज़रबत खा करके शहीद हुई, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी शहीद हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी जहर देकर शहीद किया गया और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के शहीद किया गया। आज ज़ाइरीन, आज मोमिनीन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, वो मोमिनीन जो करबला पहुँच रहे हैं, कितने खुश नसीब हैं। यूँ तो सारे मोमिनीन, सारे अहले बैत के चाहने वाले जो सिर्फ़ दिल में तमन्ना ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखते हैं, खुदावंद मुताल उनकी भी ज़ियारत को कबूल करता है, उन्हें भी बेपनाह अजर व सवाब अता करता है। लेकिन उन मोमिनीन का क्या कहना जो आज के दिन अरबईन के दिन गरीब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत में पहुँचे हैं और करीब जाकर क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।